بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سو آج کا سیشن جو ہے میں نے پہلے بریف کر دیا کہ دیٹس اباؤٹ جاب انالیسس, جاب ایویلیوشن, پرفارمنس مینجمنٹ اینڈ مینی ادر تھنگس دیٹ جنرلی وی ڈونٹ لسن ٹو آن دا سوشل میڈیا تھنگ. سو فرسٹلی میں ریکویسٹ کروں گی ہمارے گیسٹ سے جو کہ ویسے بھی بہت ویل نون ہیں, سجاد پرمر, اینڈ ہی ووڈ ایکچولی ٹیل اس کہ کیا کیا بہت کچھ وہ کر رہے ہیں. سو سجاد, انیشلی اگر آپ کو انٹروڈکشن دے دیجیے, جو کہ ویسے کافی لوگ جانتے ہیں, بٹ for the greater larger audience, please. You're very kind. I don't know if a lot of people know me, but I've been in the corporate sector for about 21-22 years. 21-22 سال گزارے ہیں میں نے corporate sector میں. پچھلے 2 سال سے میں اپنا کام کر رہا ہوں. کل ملا کے 11 سال یونیور کے ساتھ گزارے, 3 سال جی ایس کے ساتھ گزارے فارما میں, اور پھر 7 سال میں نے گزارے ٹیک کمپنی ای بے کے نام سے ہے. 2008 سے 2022 تک میں predominantly سنگاپور میں بیس تھا, جاب میری وہیں پہ تھی. پھر 2022 اگست میں I've started this company called the Talent Accelerator, which I'm trying to operate both out of Singapore and Pakistan, but I'm spending most of my time ابھی میں کراچی میں ہی ہوتا ہوں. ٹیلنٹ ایکسیلریٹر کا ہمارا پرپز یہ ہے کہ کیونکہ میرا اپنا predominantly سارا موسٹ آف مائی ٹائم ہے اسپینڈ ان ٹوٹل ریوارڈس, which is my area of expertise. ٹوٹل ریوارڈس ہے, تھوڑا بہت ٹیلنٹ مینجمنٹ ہے, پرفارمنس مینجمنٹ ہے. میں نے ایکسٹینسولی کافی کام M&A پہ کرا ہے اور ٹرانسفارمیشن پہ بھی کرا ہے ان دا جابس. تو میری ایک کوشش یہ ہے کہ کیونکہ ٹوٹل ریوارڈز ان مائی ویو از پرابلی ون آف دا موسٹ لیسٹ انڈرسٹوڈ ایریا اور مس انڈرسٹوڈ ایریا ان HR ایز ویل. اور یہ صرف پاکستان نہیں, مجھے لگتا ہے ایشیا میں جنرلی جو ہے لوگوں کو زیادہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹوٹل ریوارڈز ہوتا کیا ہے. تو اور میں کیونکہ جاب میں تھا, تو جس طرح کی سروسز یا وینڈرز یا سولوشنز ہمیں چاہیے ہوتے تھے ان دا جاب جو ہمیں نہیں ملتے تھے, تو مجھے بہت ٹربل ہوتی تھی کہ ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں امپلائیز کے لیے, کمپنی کے لیے, اس کے لیے رائٹ لیول آف سولوشنز نہیں تھے ہمارے پاس. تو ٹیلنٹ ایکسیلریٹر ایک کوشش ہے ہماری کہ دا تھنگز دیٹ وی اسٹرگلڈ ان دا ریوارڈ اسپیس, ہم اس طرح کے سولوشنز, اس طرح کی پروڈکٹس, اس طرح کے ٹیکنالوجی لے کے آئیں اور کمپنیز کو وہ دیے جائیں. تو ہم بیسکلی 3 چیزیں کریں ٹیلنٹ ایکسیلریٹر میں. وی آبویسلی ڈو کنسلٹنگ سروسز, ایڈوائزری سروسز. ہمارے کچھ اپنے ٹریننگ پروگرامز ہیں جو ہم نے ڈیولپ کرے ہیں, اور ہمارے ٹریننگ پروگرامس predominantly ٹیکنیکل ٹریننگس ہیں ساری HR کے اندر آن اسپیسیفک ٹاپکس. اور اگین ہماری انٹینشن یہ ہے کہ وی وانٹ ٹو میک دیم ویری ایکسپیرینشیل, کیونکہ جب تک آپ پریکٹس نہیں کرتے ہیں, ریوارڈ از آل اباؤٹ پریکٹس. آپ جب تک ایکسل کھول کے 5-10 سال ضائع نہیں کریں گے اس کے اوپر, آپ یو کانٹ ڈو ریوارڈ ویل. تو وی ٹرائنگ ٹو میک آل دیز ٹریننگ پروگرامس ہائی آن پریکٹس. تو یہ ہمارے کچھ 6-8 ہمارے ٹریننگ پروگرامس ہیں. اینڈ وی آر آلسو ورکنگ آن ٹیکنالوجی پروڈکٹس, بیکاز پچھلے 20 سال میں آئی تھنک HR میں بہت اچھی ٹیکنالوجیز آئی ہیں. آپ HR سولوشنز دیکھیں, آپ اسیسمنٹ ٹولز دیکھیں, آپ لرننگ پروگرامز دیکھیں, ایڈمنسٹریٹو ٹولز ہیں آپ کے بہت سارے زبردست. کمپنسیشن میں کوئی بھی ابھی تک ابھر کے کوئی ایک ٹول یا 2 ٹولز نہیں آئے ہیں وچ ریئلی سالو دا پرابلمز دیٹ کمپنیز ہیو. تو ہم نے 2 ٹولز, ایک ہمارا لانچ ہو چکا ہے وچ از اے نیو جاب ایویلیوشن ٹول, اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ. اور جو بڑا والا ٹول ہے وچ آئی ایم ریئلی ایکسائٹیڈ اباؤٹ, جس پہ ہم نے بہت ٹائم لگایا ہے, is basically is going to solve your real time benchmarking need. تو اس کا پرپز یہ ہے کہ آپ جو سیلری سروس ہم کرتے ہیں, جو چیلنجز آتے ہیں, ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کو ایسا ٹول دیں گے جس میں ایٹ اینی گیون پوائنٹ ان ٹائم آپ لاگ ان کریں, آپ بولیں گے کہ مجھے بتائیں کہ فائنینس مینیجر اس گریڈ پہ مارکیٹ میں کیا ڈیٹا مل رہا ہے, اینڈ وی ول گیو یو دیٹ سولوشن. تو آپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ جو سیلری سروے کا ہمارا چیلنج ہوتا ہے ہر سال کا, اس سے ہم کوشش کریں گے کہ آپ فری ہو جائیں. سو دیٹس آر انٹینشن. کوششیں جاری ہیں, باقی انشاءاللہ اللہ کی مرضی. بالکل انشاءاللہ. نہیں, بیسٹ آف لک فار آل دیٹ. اور اب کافی سارے آپ نے جو ہے نا وہ ڈومینس کھول دیے, تو میں سوچ رہی ہوں کہ تھوڑا سا اس کو چینل کر سکوں فار دا تھنگس دیٹ وی ایکچولی ڈسکس اباؤٹ. تو آپ نے ٹوٹل ریوارڈس کی بات کی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. مجھے اچھے سے یاد ہے کہ جب میں نے ڈیورنگ MBA بھی میں اکثر کوٹ کرتی ہوں کہ میرے لیے جو جتنی میجر لرننگ وہیں سے آئیں, جب ہم کمپنسیشن مینجمنٹ یا بینیفٹس یا ریوارڈ مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں, تو جنرلی کوئی اسٹینڈرڈائزیشن جو ہے نا بڑی مشکل سے آپ کو ڈیورنگ اکیڈمکس ملتی ہے. مطلب پڑھتے ہوئے نہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے پریکٹسز دے رہے ہوتے ہیں, بٹ اف یو ٹاک اباؤٹ سم تھنگ کہ کوئی بک ہے جس کو ہم بائی بک فالو کر سکیں یا کوئی اسٹینڈرڈائزیشن, تو وہ بڑی مطلب ویگ سی لگتی ہیں. جنرلی وہ میں نے جو دیکھا ہم پریکٹسز فالو کر رہے ہوتے ہیں, دیر از ناٹ سم تھنگ فار ایگزامپل کوئی فارمولا ہے فار تھنگس. یہ میں نے جنرلی دیکھا کہ عام طور پر ایسے سیکھ کے وہ بالکل آپ نے صحیح 8-10 سال گزار کے پھر پہنچتے. تو ٹوٹل ریوارڈز بیسکلی اگر ہم وہاں سے شروع کریں جو آپ نے بات کی تھی کہ جاب انالیسس, جاب ایولیوشن کی, تو واٹ ڈو یو تھنک واٹس دا اسٹارٹنگ پوائنٹ آف ہیونگ ٹرائی فار ریوارڈ مینجمنٹ کرنے کے لیے؟
सो पहले काम करते थोड़ा सा डिफाइन कर लेते टोटल रिवॉर्ड्स है क्या, बिकॉज आई थिंक वो जो मैंने बात करी मिस अंडरस्टैंडिंग की वो ये है कि टोटल रिवॉर्ड्स इज़ अ लॉट मोर देन जस्ट कॉम्पनसेशन बेनिफिट्स. अगर मैं ग्लोबल या रीजनल पॉइंट की बात करूँ कि जो बड़ी बड़ी फॉर एग्जांपल कोई भी आप बड़ी कंपनी ले लें, तो जो टोटल रिवॉर्ड्स का कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहला स्टार्ट ही होता है, एंड आवर स्टार्टिंग पॉइंट इसके सबसे पहले बिजनेस कर क्या रहा है, बिजनेस किस इंडस्ट्री में है, उसके क्या चैलेंजेस हैं, उनके क्या कंपेटिटर्स हैं, हम किस किस्म के लोग हायर करते हैं. जो हम बिजनेस स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो बिफोर वी गेट इनटू रिवॉर्ड हमें बिजनेस को समझना बड़ा ज़रूरी है. वंस यू अंडरस्टैंड दैट देन वी अंडरस्टैंड कि पीपल रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी पीपल स्ट्रैटेजी क्या है, एंड उसकी बेसिस पे हम आते हैं कि इस बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें किस किस्म के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की ज़रूरत है. राइट, टू मी दैट बिकम्स अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी. अब रिवॉर्ड अगर मैं ब्रॉडली बात करूं कि रिवॉर्ड एक अम्ब्रेला ले लें, टोटल रिवॉर्ड्स होता क्या है, तो आपका एनीथिंग अराउंड पे मैनेजमेंट, वो आपकी सैलरी हो, आपके इंसेंटिव्स हो, लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स हो, वो सारा आ जाता है. आपका सारा बेनिफिट्स का जो एरिया है, एंड आई वुड से पिछले 5-6 सालों में बेनिफिट्स और वेलनेस का आपने बड़ा नाम सुना होगा, टोटल यू नो फिजिकल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस. तो आई थिंक पिछले 5-6 सालों में, एंड आई कंप्लीटली एग्री विद दैट कॉन्सेप्ट कि बेनिफिट्स एंड वेलनेस हैव बिकम टुगेदर, एक हो गए हैं वो. राइट, तो अगर इफ़ यू आर इनटू बेनिफिट्स और वेलनेस भी कर रहे हैं तो मैं एडवाइस ये कंपनी से करता हूँ कि आप एक नई स्ट्रैटेजी बनाएं एंड कॉल इट बेनिफिट्स एंड वेलनेस स्ट्रैटेजी. दैट्स वेरी मच अंडर टोटल रिवॉर्ड्स. आई वुड से आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का काफ़ी बड़ा एरिया जो है वो टोटल रिवॉर्ड्स में आ जाता है, बिकॉज यू हैव अ टैलेंट साइड एंड यू हैव अ रिवॉर्ड साइड. एंड सो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एक डाउन स्ट्रीम वाला प्रोसेस जो है जिसमें बात करेंगे, दैट्स डेफिनेटली पार्ट ऑफ रिवॉर्ड. हम बात करते हैं ऑर्ग डिज़ाइन की, जॉब एवेल्यूएशन की, वो सारा इसमें आ जाता है. आई थिंक रिवॉर्ड में एक काफ़ी बड़ा एरिया वेंडर मैनेजमेंट का भी है. जैसे हम सैलरी सर्विस की बात करते हैं, आप बेनिफिट्स की बात करते हैं, इवन दो डायरेक्टली वो आता नहीं है, बट द काइंड ऑफ वेंडर्स यू वर्क फॉर, बिकॉज यू हैव टू पे मनी, राइट, यू हैव टू गेट द सर्विसेज. आप ब्रोकिंग करें, आप इंश्योरेंस कंपनीज के पास जाएं, तो पार्ट ऑफ द जॉब इज टू मैनेज वेंडर्स एज वेल, एंड द क्वालिटी ऑफ द वेंडर्स एंड सर्विसेज यू गेटिंग फ्रॉम देम. करेक्ट. फिर हमारा आता है जो यहाँ पे मे भी पाकिस्तान में इतना नहीं है, बट बाहर बहुत ज़्यादा, एंड आई थिंक इज बिकमिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट, इज द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी, डेटा सिक्योरिटी. अगेन आप, मैं साली समय में जा रहा हूँ, मेरा डेटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है, कौन से वेंडर के पास है, उनके क्या चेक्स एंड बैलेंसेस हैं. हम बहुत एडवांस सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे हम एम्प्लॉई पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सैलरी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है. राइट, तो एमएनसी लेवल्स के ऊपर आई नो कि उनकी तो रिक्वायरमेंट होती है पूरी वो चेक्स एंड बैलेंसेस की. जब तक वेंडर वो फुलफिल नहीं करता आप आगे बढ़ ही नहीं सकते. आई यूज्ड टू स्पेंड अ फेयर बिट ऑफ टाइम अराउंड बेनिफिट्स मैनेजमेंट ऑन दैट. फिर आपकी बात आती है टैलेंट मैनेजमेंट की भी टू एन एक्सटेंट, बिकॉज एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में हम जब टैलेंट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इट्स नॉट जस्ट कि किसको हायर करना है नहीं करना है. वी टॉक अबाउट व्हाट हु द टॉप टैलेंट इज, उसको किस तरह हम मैनेज कर रहे हैं, हमारे क्रिटिकल रोल्स क्या हैं, उस पर कौन बैठा हुआ है, उसको हम सही तनख्वाह दे रहे नहीं दे रहे हैं, और इसका एक ये आई लाइक टू कॉल इट राइट पर्सन राइट जॉब राइट पे. वो कंपनीज किस तरह मैनेज करी है, उसमें वी हैव टू सिट ऑन दैट इन दैट डिस्कशन. इट कैन नॉट बी प्योरली टैलेंट रेड, बिकॉज अगर सिर्फ टैलेंट काम करेगा और हमें बता देगा तो वी इट्स ऑलरेडी टू लेट, एंड सो वी हैव टू बी पार्ट ऑफ दैट डिस्कशन एज वेल. तो कॉम्पनसेशन का ऑलरेडी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, बेनिफिट्स वेलनेस इज अ बिग एरिया इटसेल्फ, फिर ये बाकी सारे एलिमेंट्स भी हैं, और हम बात करेंगे इंशाल्लाह एनालिटिक्स के ऊपर, विच आई थिंक इज शुड बी पार्ट ऑफ द डिस्कशन. कि एटलीस्ट मेरी लास्ट जॉब में तो आई थिंक हम कॉम्पनसेशन एनालिटिक्स के ऊपर, एच एनालिटिक्स के ऊपर हम बहुत काम करते थे, बिकॉज वो एनालिटिक्स के बगैर आई कैन नॉट हैव द राइट डिस्कशन विद माई लीडर्स बेसिकली. तो आई वुड से टोटल रिवॉर्ड्स ये थोड़ी कुल मिला के चीज़ें हैं. एंड लाइक आई सेड, आई थिंक द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मी हैज़ ऑलवेज बिन कि बिजनेस क्या कर रहा है, हमारी पीपल स्ट्रैटेजी क्या है, और बेस्ड ऑन दैट हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो किस किस्म का दिखता है, एंड दैट्स वेयर बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क डिज़ाइन कम्स इन. नाइस. आई थिंक बिफोर गोइंग टू द जॉब डिज़ाइन या बिजनेस, ऐसे में एक जो इंटरेस्टिंग बात आपने की वेलनेस वाली, तो उसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, हाउ डज दैट फॉल इनटू द रिवॉर्ड थिंग. जी बिल्कुल. सो मैं लेट्स टेक एन एग्जांपल. मैं कहता हूँ भाई कंपनी एक है, यू नो वो आइसक्रीम बनाती है, ठीक है, देन आइसक्रीम मेकिंग कंपनी, उनका जो भी स्ट्रक्चर है. अब हम कहते हैं भाई हम अपने एम्प्लॉइज़ को वी वांट टू गिव देम इंश्योरेंस, वी वांट देम टू हैव मेडिकल कवरेज, वी वांट देम टू हैव जिम, ठीक है. हाँ, साइकोलॉजिकल चैलेंजेस बहुत बढ़ गए हैं भाई, हम चाहते हैं कि काउंसलर भी आ जाए, यू नो, महीने में एक बार, और अगर कोई एम्प्लॉय को हेल्प चाहिए तो जाके वो ले ले. वी वांट टू गिव हेल्दी लंचेस, यू नो, आई डोंट नो, वंस अ वीक. तो आप जो भी बेनिफिट्स, और गाड़ियाँ दे रहे हैं, आप फ्यूल दे रहे हैं, जो भी हैं, तो जो कॉन्सेप्ट वेलनेस का वो ये है, एंड द 4 ब्रॉडली स्ट्रेटेजिक पिलर्स इन द एरिया ऑफ वेलनेस आर फिजिकल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, फाइनेंशियल वेलनेस, एंड व्हाट वी कॉल कम्युनिटी/सोशल वेलनेस. करेक्ट. तो
कंपनीज ने रियलाइज ये करा कि यार अगर मैं आपको मेडिकल हेल्प दे रहा हूँ, मैं आपको मेडिकल कवरेज दे रहा हूँ, दैट्स पार्ट ऑफ योर फिजिकल वेलनेस. इफ आई एम गिविंग यू जिम फॉर एग्जाम्पल, या मैं कहता हूँ आपको मैं महीने में एक बार मसाज दूंगा, दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ योर फिजिकल वेलनेस. मैं आपको पेंशन दे रहा हूँ, आपको ग्रेजुटी दे रहा हूँ, दैट्स पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल वेलनेस. बट इफ आई गिव यू एक्सेस टू ए ऐप जहाँ पे आप ये एक्सट्रैपुलेट कर सकते हैं कि रिटायरमेंट तक मुझे कितने पैसे चाहिए हो, दैट्स पार्ट ऑफ फाइनेंशियल वेलनेस, राइट. तो ये दो अलग से हमें मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. तो कंपनीज ने कहा कि यार एनी एस्पेक्ट ऑफ योर सेल्फ विच इज अराउंड एनी कॉन्सेप्ट ऑफ वेलनेस, वो आपकी रिटायरमेंट से रिलेटेड हो, वो आपकी हम आप छुट्टियां देते हैं लोगों को, वो किस लिए होता है कि भाई आपको एक मेंटल ब्रेक मिल सके, दैट्स पार्ट ऑफ इमोशनल वेलनेस, राइट. तो हमने कहा कि इनको अलग अलग में करने की जरूरत नहीं है, वी सिंप्लीफाई. और उसका एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि एम्प्लॉइज नाउ सी एवरीथिंग दैट द कंपनी डज फ्रॉम दिस फोर पर्सपेक्टिव. और आपके लिए कम्युनिकेट करना आसान हो गया है कि फिजिकल वेलनेस में हम आपको ये 17 चीजें देते हैं, इमोशनल वेलनेस में हमारे पास ये 5 ऑफरिंग्स हैं, फाइनेंशियल में आपको ये ऐप भी दे रहे हैं, हमारे पास रिटायरमेंट फंड भी है, आप जो व्हाटएवर यू आर ऑफरिंग इन द फाइनेंशियल स्पेस. तो बोथ टू एक्सप्लेन टू एम्प्लॉइज बट ऑल्सो फॉर यू टू मैनेज एज अ बिजनेस, कंबाइनिंग बेनिफिट्स एंड वेलनेस हैज बिकम ईजियर. इन वेलनेस का पर्पस यही है, आप बेनिफिट्स ना भी बोले, आप बोले कि वी हैव वेलनेस ऑफरिंग्स. अच्छा, मैं यही सवाल कर रही थी आपसे कि लाइक जो मुझे पूरा इसकी डेफिनेशन से पता चला कि व्हाट ही यूज्ड टू कॉल द कॉम्पेंसेशन एंड बेनिफिट्स, आई थिंक दैट वाज मोर maybe the modern terminology is like catering to the purpose of this benefit is that wellness, right? Absolutely. Okay, so we can call it that. Just call it wellness, compensation wellness. क्योंकि वेलनेस में आपकी सारी जो आप ऑफर्स दे रहे हैं, आप गाड़ी किसी को दे रहे हैं कि भाई तुम्हारा बेनिफिट है, बट दैट्स पार्ट ऑफ यू वांट टू लुक आफ्टर देम, राइट. वो आपका ग्रेड बेस्ड हो या नीड बेस्ड हो, हम अपने सेल्स एम्प्लॉइज को बाइक देते हैं because we want to look after them, right. हमारे यहाँ पे 45 डिग्रीज होती है हीट, 8 महीने. We don't want them to walk and take buses. अगर हमारे उनको बाइक देने से, गाड़ी देने से उनका काम थोड़ा आसान हो जाता है. It's a job based need. Ultimate aim is कि we want to make their life easier. We want them to be well, basically. Yeah, correct. That's really interesting. I think it will benefit the people who are actually managing the ward thing. Okay. So अब जो I think मेरा ज़्यादा बहुत आपको बहुत core area है, that's job analysis या organization design. तो डेफिनेटली आप जो बात करते हैं वो ये कहते हैं कि जो रिवॉर्ड जो है दैट वाज रिवॉल्व अराउंड द प्लेसमेंट ऑफ द रोल एंड द ऑर्गेनाइजेशन साइज एंड एवरीथिंग. सो अगर आप जॉब अच्छा हमने जब पढ़ते वक्त तो पढ़ा था कि जॉब स्पेक्स, वैसे अगर कहें जॉब इवैल्यूएशन में तो हम जनरली मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हम नहीं कर पाते हैं. हम व्हाट वी हैव जनरली इन हैंड प्रैक्टिकलिटी में अगर देखें तो एक जॉब डिस्क्रिप्शन हमारे पास होता है और किसी तक जॉब स्पेक्स डिफाइंड होते हैं जिसके कुछ कॉम्पिटेंसी पे हम बना रहे होते हैं. सही. तो वेयर डज दिस जॉब इवैल्यूएशन थिंग वो कहाँ गायब हो जाती है? हम पढ़ते तो हैं लेकिन हो नहीं पाती. सही. आई थिंक बिफोर जॉब इवैल्यूएशन जो हमने बात करी कि आपका जो स्ट्रक्चर है दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट, राइट. कि आप जिस बिजनेस में भी हैं, आपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया है वो जो भी है. अच्छा, जॉब इवैल्यूएशन का मैं डेफिनेशन बताता हूँ. बहुत बेसिक डेफिनेशन ये है कि यू वांट टू अंडरस्टैंड द साइज ऑफ अ रोल. मैं आपने कहा कि आई एम गोना हैव अ न्यू रोल एंड बिकॉज जो डिजिटलाइजेशन चल रही है और टेक में जो काम हो रहा है, आई एम गोइंग टू हायर अ न्यू रोल कॉल्ड हेड ऑफ एआई फॉर आवर बिजनेस. वो सारा काम है मैं एआई में करके देगा, राइट. अब आपने कहा कि भाई ये हेड ऑफ एआई रोल को ये क्या जूनियर रोल है, मिड मैनेजमेंट रोल है या सीनियर रोल है. जॉब इवैल्यूएशन ये एस्टिमेट लगाता है आपकी नीड के हिसाब से कि ये किस लेवल पे होना चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन ग्रेड में. दैट्स बेसिकली व्हाट जॉब इवैल्यूएशन इज. कंपनीज क्यों नहीं करती हैं ये तो मुझे आज तक खुद नहीं पता चला. बिकॉज इफ यू थिंक अबाउट कि आप किसी जब एक रोल को डिटर्मिन करते हैं तो एवरी रोल हैज अ मॉनेटरी वैल्यू अटैच टू इट. अगर आप उसको मैनेजरियल रोल पे लेके आएंगे तो लेट्स से कंपनी को कॉस्ट करता है 20 लाख रुपए. अगर आप उसको सीनियर मैनेजर पर लेके आएंगे तो शायद वो 25 लाख करे, राइट. एवरी रोल हैज अ वैल्यू अटैच टू इट. अब अगर आप इसको एक्सट्रैपोलेट करें अपनी कंपनी के सारे यूनिक रोल्स के ऊपर और ये अंदाजा लगाएं कि आपके अगर 15-20% रोल्स भी गलत ग्रेड पे हैं तो या तो आपने अपनी कॉस्ट इन्फ्लेट करी हुई है काफ़ी ज़्यादा, या आपने लोगों को हायर करा हुआ है, काम ज़्यादा करवाने पैसे कम दे रहे हैं, विच बोथ आर नॉट करेक्ट. अब मैं आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल दूं कि आई नो फॉर लाइक जिन कंपनीज के साथ मैंने काम करा है, वी कैन नॉट प्रमोट पीपल और वी कैन नॉट हायर फॉर अ न्यू रोल टिल द जॉब हैज़ बीन एवेल्युएटेड. बिकॉज अगर मैं कंज्यूमर का एग्जांपल दूं, फार्मा का एग्जांपल दूं, विच आर वेरी कॉस्ट सेंसिटिव बिजनेसेस, तो जब आप एस्टिमेट लगाते हो कि नेक्स्ट ईयर हमारी ये प्रॉफिटेबिलिटी टारगेट है तो योर पीपल कॉस्ट इज यूजली द सेकंड लार्जेस्ट कॉस्ट फॉर एनी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस. तो उनके लिए पीपल कॉस्ट को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है. अब आप अगर आपके पास जॉब इवैल्यूएशन कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप बेसिकली यू शूटिंग इन द डार्क. आपके पास ये 8% लोग अच्छे थे, उन परफॉर्मेंस अच्छी थी, आपने उनको प्रमोट कर दिया. भाई वो जॉब बड़ी हुई है नहीं हुई है ये तो एस्टिमेट लगाए ना पहले.
We're not saying don't promote people, but we promote them on the right level that they deserve. And the scalability of the business ना, क्योंकि वो that will push that job exactly, to go exactly. up. तो अगर आपने 200 अगर आपके 200 रोल हैं और आपने 25-30 रोल पे आपने इन्फ्लेट करी हुई है कॉस्ट, एज अ कॉस्ट सेंसिटिव बिजनेस आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन आप उन 20 रोल के ऊपर मे बी आप आई डोंट नो 5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं, राइट? एंड सो नाउ व्हेन थिंग्स गो डिफिकल्ट, फिर आप बेसिकली करते हो कि आप कहते हो कि लोगों को निकालो. मे बी यू डोंट नीड टू, एंड दैट्स आई थिंक द ब्यूटी ऑफ जॉब एवेल्यूएशन. दूसरा जॉब एवेल्यूएशन का इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आई वुड से पूरी HR वैल्यू चेन पे ये है कि जब आपको ग्रेड डिटरमिन हो गया तो आपको पता है कि सैलरी जो है वो तो है, इस रोल पे क्या स्किल सेट्स चाहिए, इस रोल का सक्सेशन प्लान क्या बनेगा, इस रोल के हिसाब से इसको स्किल्स एंड ट्रेनिंग्स की क्या जरूरत होगी, राइट? तो हम एक कर रहे हैं, बट इसके बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं. आपको इस रोल के ऊपर जिस तरह के स्किल सेट चाहिए वो टैलेंट एक्विजिशन में इसको इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट? तो द कंपनीज दैट डू दिस रियली रियली वेल, उनका एक बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर बना हुआ है कि जॉब इवैल्यूएशन का प्रोसेस होता है एंड इट इम्पैक्ट्स ऑल दीज 7-8 अदर प्रोसेसेस इन HR. एंड आई डोंट नो व्हाई कंपनीज डोंट डू दिस. आई वुड से कि अगर आपके पास एक डायनामिक स्ट्रक्चर है, विच मीन्स के एवरी ईयर 20-25% ऑफ रोल्स कीप चेंजिंग. टेक में ये बहुत कॉमन है कि 40% रोल हर साल चेंज हो रहा होता है, बिकॉज इतनी तेजी से चीजें चेंज हो रही हैं. तो आई वुड स्टिल से उससे भी फर्क नहीं पड़ता. यू हैव सर्टन रोल्स व्हाट वी कॉल कोर रोल्स, यू हैव सर्टन रोल्स व्हाट वी कॉल एंकर रोल्स, और फिर बाकी ये आपके रोल्स हैं जो चेंज होते रहते हैं. यू वुड स्टिल बेस योर स्ट्रक्चर ऑन सम ऑफ दीज रोल्स इनसे कि हमने यहाँ पे वैल्यूएशन करी हुई है, हमें थोड़ा सा आइडिया है. बात वही आती है कि ये सारा काम होता है ऑर्ग डिजाइन से स्टार्ट, एंड कंपनीज अनफॉर्चुनेटली डोंट पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू दिस. तो इसमें मुश्किल तो होता है ना. मैं खुद मेरे विचार देखे, आपने बात की कि एक तो जॉब एवेल्यूएशन आपने कहा, वहाँ पे पहले मैं चाहूँगी वहाँ से आप बात करें कि जो आपने ये जो आजकल प्रेशर है बहुत ज़्यादा, ठीक है, सुनने में हमने सोच रहा था गूगल से इतने लोग निकलेंगे, देन अमेज़न से, देन अभी आप वी वर ऑफलाइन टॉकिंग अबाउट मेटा, एंड लाइक एवरी न्यू डे यू लिसन टू ना. हम सोचते थे कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में शायद ये मसला होगा, शायद इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं, लेकिन इट्स लाइक वर्ल्ड वाइड वी आर विटनेसिंग. तो कहीं मुझे लगता है कि इसका ताल्लुक शायद इस चीज़ से है कि क्या अगर हमारा जॉब एनालिसिस या जॉब एवेल्यूएशन या डिज़ाइन इस तरह का हो तो हमें शायद इतनी फ्रीक्वेंट जरूरत ना पड़े, या लाइक वेयर इज द पिटफॉल? सो टेक, बिकॉज मैं 7 साल मैंने टेक में गुजारे, तो आई थिंक हमारी द कंपनी आई वर्क फॉर eBay, आई वुड से कि उसमें हमारा, क्योंकि एक तो बहुत पुरानी है, पायनियर्स हैं टेक में, तो हमारा सिस्टम थोड़ा बेहतर था. कोविड में बहुत कंपनीज ने ये गलती करी, क्योंकि कोविड में बहुत टेक कंपनीज को फ़ायदा हुआ है, तो उन्होंने बगैर अगेन स्ट्रक्चरली अगर आप देखें यही हुआ. एंड आई नो सम पीपल इन दीज कंपनीज कि उन्होंने लोग भर्ती कर दिए, बस हमें बंदे चाहिए, जो मैनेजर ने एस्टिमेट लगाया HR ने उसको सपोर्ट करके हायर कर लिया. एंड आई थिंक दैट्स द प्रॉब्लम, राइट? हमारा जॉब HR में ये है कि वी हैव टू बी द कस्टोडियंस ऑफ द स्ट्रक्चर. आई ऑनेस्टली बिलीव दैट. इट डज नॉट, इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस डज नॉट हैव अ से. HR कम्स इन, दे आर एडवाइजर्स, वे कंसल्टेंट्स, एंड वी टेल देम कि यार आप जो ये हायर कर रहे हो सोल के ऊपर, ये मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है. वी वर हायरिंग समबडी और मैं बिल्कुल उससे खुश नहीं था, बिकॉज मैंने कहा आप इस रोल को इन्फ्लेट कर रहे हो और इसके रिपरकशंस होंगे. इवेंचुअली बिजनेस ने एक डिसीजन लिया और 3 साल बाद वो उनको पता चला कि इट डिडंट वर्क आउट, राइट? अब आप 5000 बंदा हायर कर रहे हो बगैर किसी स्ट्रक्चर के, क्योंकि आपको चाहिए, लेकिन आप जल्दी में आपने 5000 बंदा हायर कर दिया है. इट हैज़ टू मेक अ डिफरेंस, राइट? इट इज आपको जैसे ही चीज़ें खराब होंगी, तो यही हुआ टेक इंडस्ट्री में, लोगों ने भर्ती कर दी है. आई एम नॉट सेइंग स्ट्रक्चर नहीं है, बट जॉब इवैल्यूएशन का पर्पज़ ही यही है कि इट अलाउज यू टू कंट्रोल कि कौन किस लेवल पे आ रहा है, डज इट मेक सेंस और नॉट. हर रोल की कॉस्ट है, तो अगर आप ज़बरदस्ती लोगों को आपको ज़रूरत है, और मैं आपको इसका ये एग्जांपल देता हूँ. इट इज़ वेरी कॉमन इन कंपनीज, जब आप हायर कर रहे होते हो, आपको अच्छा कैंडिडेट मिल गया, आप कहते हो कि यार ये कैंडिडेट बहुत महंगा है, तो एक काम करो, हमारा रोल को आप 1+1 कर दो. आपको हायर 4 पे करना था, 4 पे आपको बंदा मिला नहीं, आपको बहुत ज़बरदस्त बंदा मिल गया, आपने कहा यार सैलरी नहीं बननी, इसको 3 पे हायर कर दो. वी शुड नेवर एवर डू दैट. It is very very bad practice. I would say it's not just an HR bad practice, it's a management bad practice, right? इसकी बहुत implications होती हैं. तो अगर आप 5000 बंदा हायर करो, जिसमें से आपने 1000 बंदे को ओवर ग्रेड पे हायर करा है, तो आपने अपनी कॉस्ट बढ़ाई, आपने अपने पूरे स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करा. अब जब चीज़ें खराब होंगी या मुश्किल में आएंगी, तो फिर यही होना पड़ेगा कि आपको फिर बल्क में निकालने पड़ेंगे लोग, बिकॉज यू इन्फ्लेटेड द कॉस्ट सो मच. एंड इवन व्हेन यू आर डूइंग रीस्ट्रक्चरिंग, हमने ये भी देखा कि रीस्ट्रक्चरिंग भी बहुत समटाइम्स अजीब तरीके से हो रही है. उनको $1 बिलियन बचाना है, और जो सामने आया पकड़ के उनको फारिग कर दिया. जॉब इवैल्यूएशन को ऑर्ग डिज़ाइन इन मैच्योर ऑर्गेनाइजेशंस वो करती यही हैं कि इट्स नॉट अ रिएक्टिव एक्सरसाइज, इट्स अ वेरी प्रोएक्टिव एक्सरसाइज. अगर मैं आपको GSK के एग्जांपल दूँ, यूनिलीवर का एग्जांपल दूँ, जो एटलीस्ट व्हेन आई वाज देयर, कि
बिजनेस स्ट्रैटेजी के ऊपर पूरा ऑर्ग डिज़ाइन का एक्सपर्ट बैठता था और वो ये देखता था कि 3 साल में हमें स्ट्रक्चर बनाना कैसा है. इट इज़ अ वेरी सीरियस एक्सरसाइज और ये उसके लिए बड़ी स्पेसिफिक एक्सपर्टीज चाहिए. और उस 3 साल की स्ट्रैटेजी के ऊपर स्ट्रक्चर पूरा बनता था तो पता चलता था कि रोल्स कौन से होंगे. उसकी बेसिस पे हायरिंग होगी, इनिशिएट होगी, तो ये काम होता था. तो ये पूरा प्रोएक्टिव काम है, ये रिएक्टिव काम नहीं है. आई थिंक दैट मींस सॉरी टू कट इन बिटवीन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की कि आई थिंक 2 चीज़ें हैं. जैसे आपने कहा बिल्कुल राइटली यू सेड कि एचआर इज कस्टोडियन ऑफ इट ना, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे आता है कि जब बिजनेस इज पुशिंग यू टेक जी अपनी करनी है हायरिंग, बहुत ज़रूरत है, हमारा बिजनेस है, एंड देन at times when HR doesn't have the visibility कि actually जो business visibility क्या बन रही है, तो then this discussion needs to happen, right? वो जो visibility होनी चाहिए कि जी अगर ये कर रहे हैं तो उसका क्या आउटकम है, कितने अरसे में आपको पे बैक होगा, क्या होगा, वो चीज़. दूसरी बात आपने की कि जी जो 3 साल का प्लान या जो है वो आई थिंक जनरली वी कॉल इट स्ट्रैट प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ना. तो इस स्ट्रैट प्लान की बहुत ज़रूरत है ना कि ऑर्गेनाइजेशन अगर आज किसी फाइन डे आपको ख्याल आ गया कि आपने जो 50 लोग रखने हैं, so that's it, that the like was it discussed or like was it planned somewhere in that strat plan? अगर नहीं हुआ तो फिर इसके outcomes क्या है? तो I think ये एक approach हो सकती है कि that should be the I would say कि अगर business सबसे पहले तो एक I think and it's sometimes quite sad that the HR head is not in these discussions. सबसे पहली बात तो ये I think, and to that extent if the HR head is part of the discussion and they see something is not right, I think we have to stand up. That's the job of an HR leader in my view. And मैं I've seen actually HR leaders जिन्होंने जाके अपने बॉस से पंगा करा है, चैलेंज करा है, बिकॉज वी हैव टू एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशंस. हम फिर अगर ये इम्प्लीकेशन के वरी नहीं करते तो फिर हमें टैलेंट मैनेजमेंट की कहानी नहीं करनी चाहिए. एंड बुरा लगता है तो बुरा लगने दें, बट दैट्स आवर जॉब, राइट? बिकॉज जो लीडर है वो सिर्फ बिजनेस के बारे में सोच रहा है, बट आवर जॉब इज टू एक्सप्लेन टू हिम कि बिजनेस इज वन थिंग, बट इफ यू डू द रॉन्ग पीपल प्रैक्टिसेस वो बिजनेस को ही आके हर्ट करेगा. And we have to stand up to that and explain the implications sometimes. तो org design का भी ये जो आपने strat planning की बात करी, exactly यही है. strat planning है 3 साल की कि अगर 3 साल में हमें head count कम करना है या बढ़ाना है forecast की basis पे, तो structure क्या बनेगा. वो structure जब final हो गया तो फिर आपको पता है कि कौन से roles हैं कौन से नहीं हैं. Then you just have to follow the process. फिर हमारा effort कम हो जाता है. एंड कंपनी एंड आई वुड से कि अगर हर 4 साल में अगर आप एक org structure को रिवाइज नहीं कर रहे हैं, आई थिंक इट्स ऑल्सो गुड प्रैक्टिस कि वी शुड रिकमेंड टू द लीडर्स कि अगर एवरी 3-4 years वी शुड लुक एट द ऑर्ग स्ट्रक्चर, बिकॉज दुनिया में जिस तेज़ी से चेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी है, ये है, टैलेंट चैलेंजेस हैं, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, तो उसमें डू वी हैव द राइट स्ट्रक्चर और नॉट. गुड प्रोग्रेसिव कंपनीज, आप जो मैच्योर इंडस्ट्रीज हैं, दे डू इट रेगुलरली. तो काउंटर आर्गुमेंट ये है ना कि एवरी ईयर वी डू दैट. जब हमारा जो होता है, जब आप टारगेट बनाते हैं, ठीक है, बिजनेस टारगेट्स वगैरह जो बनते हैं, साल की बजटिंग हो रही होती है, तो देयर वी डू दैट हेड काउंट बजटिंग ना. हेड काउंट बजटिंग करते हैं, बट उसमें रोल्स के ऊपर आप वो डिस्कशन कर रहे हैं कि डू वी हैव द राइट रोल्स, एंड द रोल बाय रोल्स आई आल्सो मीन द स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज, राइट? सो सिंपल एग्जांपल था, आपके पास हेड ऑफ सेल्स का रोल है जो हर कंपनी में होता है, बट हेड ऑफ सेल्स रोल्स हर 2 साल में सेम तो नहीं रहेगा ना. उसकी भी नीड, उसकी स्किल्स, उसकी कैपेबिलिटीज भी चेंज हो रही हैं. अगर मैं आपको क्लासिक एग्जांपल देता हूँ, 50% मेरे पास जिन कंपनी से मैं बात करते हैं, दे हैव ऑल ग्रोन माशाल्लाह वेरी वेरी नाइस इन द लास्ट 5 to 7 years. ठीक है ना, सब एवरीबॉडी इज ग्रोन. अभी भी वही पुराना स्ट्रक्चर चल रहा है, राइट? एंड दैट्स द प्रॉब्लम, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट कि रोल बड़े हैं, आपका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हुआ है, या कॉम्प्लेक्स जो रोल जो पहले लेट्स से कि उसकी रेवेन्यू रिक्वायरमेंट थी 2 करोड़ रुपए, अब वो 4.5 करोड़ रुपए कमा रहा है, राइट? माई पॉइंट इज कि यू नीड टू एटलीस्ट हैव अ व्यू and you need to at least study the fact कि ये रोल वो है कि नहीं है. अब तो यहीं से उस एसोसिएट के भी प्रॉब्लम आता है ना कि उनकी एक्सपेक्टेशन भी चेंज हो रही होती है, जो कि हम नहीं प्रोएक्टिवली देख पाते हैं. सही है, बिल्कुल. तो जॉब एवैल्यूएशन का पर्पस यही है कि आप एक स्टडी कर लें, एवरी 4-5 years कि भाई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, क्या रोल्स हैं आपके पास, उन रोल्स की क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपका भी साइज़ बढ़ रहा है, आपके कंपेटिटर का भी साइज़ बढ़ रहा है ना. तो जो हम साइंस की बात करते हैं जॉब एवैल्यूएशन में, वी डोंट ओनली लुक एट योर कंपनी इन आइसोलेशन, वी कंपेयर वर्सेस द इंटायर इंडस्ट्री. और जॉब एवैल्यूएशन जो मेथोडोलॉजीज़ हैं, दीज आर ग्लोबल मेथोडोलॉजीज. सो आप एक कैफ़े चला रहे हो या आप 2 million एम्प्लॉयज़ का ग्लोबल MNC चला रहे हो, यू आर स्टैक्ड अप अगेंस्ट द सेम साइंस टू ब्रिंग कंसिस्टेंसी, राइट? तो उसका एडवांटेज ये है. तो बट दूसरी चीज़ मेरे पर्सनली मुझे लगता है कि आपने एक एक्सरसाइज कर ली है, फिर आप सुकून में आ गए कि राइट और रॉन्ग, this is what the structure is, these are the levels of the role, then you have more power to go take it back to the organization and say कि यार ये हमारे पास implications हैं. You cannot have that discussion confidently till you have done the exercise. और to make it easy for companies, मैं ये भी कहता हूँ कि I know it's ये काफ़ी tedious exercise होती है, इसमें बहुत effort लगता है, इसमें काफ़ी महीने लगते हैं.
میں نے بہت ساری کمپنیز کو ایڈوائز کرا ہے کہ آپ اگر آپ کی کمپنی بڑی ہے آپ سب کے لیے نہ کریں. ہاں یہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اگر اب آرگنائزیشن تو بن گئی, لیکن آپ نے جو بات کی وہ ہم بھی کہتے تھے کہ جب ایچ آر اینڈ وہ اس وقت آنا چاہیے جب کمپنی بن رہی ہے, ٹھیک ہے, ڈیزائن کر رہے ہو آپ, پیپر پہ بنا رہے ہو, تو دن وہاں پہ آنا چاہیے نا, ویئر آئی تھنک دیٹس دا پوائنٹ. ہاں آپ جاب انالیسس, جاب ایویلیویشن, ایوری تھنگ بہت اچھے سے کر سکتے ہیں. اب وہ تو کمپنی بن گئی, بڑی بھی ہو گئی, صحیح, بہت لارج ہو گئی, اب کیا کریں, اب بیچ میں سے کیسے شروع کریں؟ اور اس میں یہ بھی ایڈریس کیجیے گا کہ لائک پھر اس کے بعد جو پریشر آتا ہے کہ جی لوگ زیادہ ہو گئے تو پھر وہ کیا کریں؟ سو آئی تھنک دا اسٹارٹنگ پوائنٹ از کہ دیکھیں اف یو ٹیک اے سیلز رول, ٹھیک ہے, سیلز ریپ کا رول ہے لیکن اس پہ 400 بندہ کام کر رہا ہے, رول تو ایک ہی ہے. تو آئی تھنک مائی ایڈوائز یوزلی اس کہ آپ ٹاپ 15 to 20% آپ کے جو کرٹیکل رولز ہیں نا وہ پکڑ لیں آپ, which typically would be CEO-1, CEO-2, CEO-3 لیول پہ ہوں گے. فنکشنل ہیڈز ہو گئے, جو سینئر مینیجرز ہو گئے, بیکاز یہ وہ رولز ہیں جس میں یوزلی ٹپکلی 1-2 بندے کام کرتے ہیں. یہ وہ رولز ہیں جہاں پہ آپ سیلریز اور بینیفٹس بھی ہائی دیتے ہیں, رائٹ. تو ان میں اگر آپ نے ایکسٹریپولیٹ کریں اور اگر آپ نے زیادہ لوگوں کو زیادہ ہائیلی گریڈ پہ رکھا ہوا ہے تو یو آر اسکلیٹنگ دا کاسٹ اگین, سمپل ایز دیٹ, ٹھیک ہے. یہ آلسو وہ رولز ہیں جہاں پہ اسکلز, ایکسپیرینس, ایکسپرٹیز ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہیں, یونیک رول اسپیشلی زیادہ, اور ان کا امپیکٹ بھی زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ نے کسی کو انڈر گریڈ رکھا ہوا ہے, بیسکلی رول بڑا ہے, آپ کم پیسے دے رہے ہیں, یو آر آلسو میکنگ اٹ ایزی فار یور کمپیٹیٹرز ٹو پوچ. شی ڈز دی ادر ایلیمنٹ. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ اوور گریڈنگ. اگر آپ نے غلط گریڈ پہ رکھا ہوا ہے تو وہ بندہ کام تو کر رہا ہے ایک حد کا, لیکن آپ اس کو پیسے کم رول کے دے رہے ہو, باہر والا کمپیٹیٹر دیکھے گا کہ یار اس کو تو کم پیسے مل رہے ہیں, کام تو بہت کرے, تو اٹھا لو فوراً, اور وہ خوشی خوشی جائے گا وہاں پہ, کیونکہ اس کو وہاں پہ سو دیٹس دی ادر پارٹ آف اٹ. سو مائی سجیشن از کہ آپ پوری آپ کو نہ لیں, ٹیک دا ٹاپ 15-20% کرٹیکل رولز جو آپ کے لیے ضروری ہیں, جہاں پہ آپ کا ٹاپ پرفارمر کام کر رہا ہے. دیز رولز آر ویری کروشل فار یور بزنس پرفارمنس, ایٹ لیسٹ دیٹ بیکمز اے اسٹارٹنگ پوائنٹ نا. تو اس میں ایفرٹ بھی کم لگتی ہے اینڈ اس میں ٹائم بھی کم لگتا ہے بیسکلی. ٹھیک ہے, تو مطلب اگر ہم آج کرنا چاہیں تو آئی تھنک یور ایڈوائس از وی کین اسٹارٹ فار لائک 10-15-20, جنرلی اتنا اس سے زیادہ نمبر نہیں ہوتا ہے اس پوزیشن کے اوپر. اگر -1 کی ہم بات کریں, C-1 کی, تو اگر وہاں سے کریں تو ایٹ لیسٹ آپ کوئی وہ ایوری تھنگ فال ان ٹو پلیس, اینڈ دین پھر آپ اس کے نیچے جو ہے ایکسٹریپولیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا سوال جو آپ سے کرنا چاہتے تھے وہ یہ کہ اب بن گئی, آج ہمیں انداز ہو رہا ہے کہ جو آرگنائزیشن بیکمنگ فیٹ, بہت زیادہ لوگ ہیں, کیا کریں, بزنس اتنا نہیں ہے لیکن بزنس سائز کے حساب سے لگ رہا ہے کہ جی ویٹ زیادہ ہو گیا ہے اینڈ دین وہ کم ہے, تو بزنس کا جنریشن یا تو اس کو پھر ہم, کیونکہ اس کا اسٹیٹ پریشر پھر یہ آتا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ جی ہاں جو سامنے آئے بس نکال دو, تو کیا زیادہ سیلری والے لوگوں کو نکال دیں, کم کو نکال دیں, جہاں زیادہ لوگ لگ رہے ہیں, تو ہاؤ جنرلی ایک عام طور سے ہم کیسے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ جی کدھر ضرورت ہے, اور کیسے کون سی اپروچ ہے جو فیئر بھی ہو اور آرگنائزیشن کے لیے بھی بینیفٹ, اور ایسوسیٹ میں تو خیر ٹریٹ ہو جائے. آئی تھنک اٹ پرابلی کمز بیک تو آئی تھنک 2 چیزیں جو ہم نے کری ہیں. ایک تو یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شیپ آف آرگنائزیشن کیا ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم ان این آئیڈیل سیناریو لاجیکلی ہمیں لگتا ہے کہ ایک پیرامڈ شیپ ہونا چاہیے, سی اوپر بیٹھا ہوا ہے اور آپ کی بلک پاپولیشن ایسی ہے. آئی تھنک بہت ریئرلی ہوتا ہے کہ ایک بڑی کلاسک پیرامڈ اسٹرکچر بنتا ہے, رائٹ. تو پہلا میرا ریکمنڈیشن یہ ہوگی کہ آپ پہلے تو دیکھیں کہ اسٹرکچر بزنس کا کیا ہے, اور یہ تو آرام سے 5 منٹ کا کام ہے ایکسل کے اوپر, رائٹ. The question you have to ask after that is this the right structure for the organization? So for example, آپ کو پتہ چلا کہ آپ نے مینیجریل اور سینئر مینیجر لیول کے اوپر زیادہ لوگ ہائر کرے ہوئے ہیں, رائٹ. اب آپ کے بزنس میں ایگزیکیوشن والے لوگ زیادہ چاہیے, آپ کے بزنس میں ڈیسیشن میکر زیادہ چاہیے, یا ٹرانسلیٹر زیادہ چاہیے, رائٹ. دس از پارٹ آف دا اسٹریٹجی. اگر آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ مجھے صرف 15 ڈیسیشن میکر چاہیے, باقی مجھے فل ایگزیکیوشن چاہیے, یہ وہ بزنس اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے, تو اگر آپ نے اننیسیسریلی زیادہ سینئر مینیجر بھرے میں جو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں, آپ کو ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. یو جسٹ نیڈ بیسک گڈ پیپل مینیجرز, ایگزیکیوشن تو نیچے کروانی ہے نا, تو اٹ بیکمز ویری ایزی. دوسرا بھی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یو کین ڈو واٹ وی کال پروڈکٹیوٹی انالیسس, کہ اگر آپ کے ملٹیپل آفیسز ہیں, آپ کی فیکٹریز ہیں, آپ کے سیلز ریپ آفیسز ہیں, آپ کے ہیڈ آفس ہے, کہ بائی فنکشن بائی گریڈ پروڈکٹیوٹی کیا چل رہی ہے. تو میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ جو بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں, آئی تھنک ڈپینڈنگ اپان دا نیڈ دے ڈو واٹ دے کال اسٹریٹجک ریویوز, جس میں میکنزی ٹائپ کے لوگ آتے ہیں, آپ کے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں, اور وہ کرواتے ہی ہیں کہ ہمارے بزنس کی پروڈکٹیوٹی نکال کے دکھاؤ, اور ہمارے جو کمپیریٹرز ہیں ان سے کمپیئر کر کے دکھاؤ, تو یہ ڈیٹا ملتا ہے گلوبلی لیول کے اوپر. تو اگر آپ کو پریشر لگ رہا ہے یہاں پہ پاکستان میں, اگر آپ ایگزامپل ہے آپ کا ڈومیسٹک بزنس ہے, مے بی آپ کو کمپیریٹر انفارمیشن نہ ملے, لیکن آپ کم از کم انٹرنل پروڈکٹیوٹی انالیسس کر سکتے ہو. مے بی آپ کے 5 سیلز ریپ آفس ہیں جس میں 3 جو ہیں آپ کے حساب سے یار اچھا کر رہے ہیں, باقی 2 جو ہیں وہ جس ایریا میں ہیں وہاں پہ ریونیو اتنا نہیں آ رہا ہے لیکن کاسٹ بنی ہوئی ہے, اٹ بیکمز اے لٹل بٹ ایزیئر.
सो आई वुड से प्रोडक्टिविटी एनालिसिस एंड शेप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आप एक निकाल लें कि वो शेप आपको, अच्छा टू द अदर साइड ऑफ दिस इज कि आपको लगता है कि यार हमारा बिजनेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हमारे जो प्रोडक्ट की सर्विसेज हैं वो ऐसी हैं कि जिसको बेचना आसान नहीं है, तो मे बी वी नीड मोर क्रिटिकल थिंकर्स इन द मैनेजरियल लेवल, बिकॉज जब हम क्लाइंट्स के पास जाते हैं वो बेचने के लिए तो हमें जूनियर बंदे नहीं चाहिए, हमें थोड़े से चाहिए, एंड दैट्स वैलिड टू, एंड सो योर स्ट्रक्चर, फिर आपको पता चला कि हमारे पास एग्जीक्यूशन के लोग ज़्यादा भरे हुए हैं, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम. So the shape of the organization linked to your business strategy and the kind of products you're selling the kind of business it is. Exactly. उससे बड़ा काम आसान हो जाता है. Okay, nice. ठीक है. Okay, I think that pretty much makes sense. एक सिर्फ इसमें लास्ट वाले टॉपिक पे रह गया कि वो जो आपने बात की कि अगर आपने देखा कि कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, आपने कहा ना कि हम देखेंगे कि जी के ज़्यादा लोग हैं या कम हैं, तो इज देयर एनी टूल दैट वी कैन यूज़ फॉर दैट, जो आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो आपका स्किल सेट है, मतलब आप सिंपल कॉम्पिटेंसीज देख रहे होते हैं, आपने बिजनेस एवेन्यू देख लिया, लेकिन फील्ड सेल्स में तो क्या आसान है, फील्ड सेल्स में हमने बात की जी कमर्शियल है, आपको पता है जी नंबर टारगेट्स हैं, तो उस रोल की प्रोडक्टिविटी अगर 100 मेडिकल रेप है या 100 आपके फार्मा सेल्स के लोग FMCG में भी हैं, तो ये प्रोडक्टिविटी आ रही है, हाँ जी बिजनेस को वो कॉम्प्लीमेंट कर रही है. अब आ जाता है बैक ऑफिस, वहाँ पे अक्सर चैलेंज मेरी वहाँ पे आता है कि जो उनकी प्रोडक्टिविटी, इज देयर अ टूल दैट यू यूज़ और क्या? I think this is not my area of expertise, but मुझे पता है कि कुछ global benchmarks हैं. For example, ये तो हमने खुद भी कंपनी में यूज़ कर रहे हैं कि HR headcount as a ratio of number of employees. तो अगर आप if you search तो आपको मिल जाएंगे anywhere between 75 to 125. आपका बिजनेस कैसा है कि अगर आपके पास 10 बंदा HR में है तो the company headcount should be between 500 to 750. इस तरह का होता है. दूसरा आप लॉजिकल कर सकते हैं कि अगर HR की टीम फाइनेंस की टीम से बड़ी है तो आई थिंक दैट्स अ प्रॉब्लम, राइट. और ये हमने अपने कुछ कंपनीज में देखा है कि बड़ी कंपनीज में कुछ HR के 250 बंदा काम कर रहा है, फाइनेंस का 150 बंदा काम कर रहा है. अच्छा. हाँ, ये ऐसे भी देखा है. तो ज़्यादा मैंने फाइनेंस के ज़्यादा ही देखे. होना तो फाइनेंस की ज़्यादा चाहिए बिकॉज रिलेटिवली बड़ा ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन भी है, टैक्स भी है, ये भी है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं. तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं. मुझे नहीं पता इस तरह का डेटा यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं. आपने कंपैरिजन ऐसा कर दिया बहुत सारे. आई नो अभी जूते पड़ने वाले हैं तो बट माय पॉइंट इज कि यू नो अगेन इफ यू नो योर बिजनेस वेल, यू नो कि आपको किसी ज़रूरत है. अब मैं आपको इसका फ्लिप एग्जांपल देता हूँ. आप ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहाँ पे आपका एट्रिशन 40% है, आपका 15,000 बंदा आपका हेड काउंट है, बैंक ले लें कोई 15,000 बंदा है, 40% एट्रिशन है. इसका मतलब है कि सिर्फ रिप्लेसमेंट आपको करनी है 6,000 लोगों की एवरी ईयर. तो अगर आपके पास रिक्रूटमेंट टीम है तो आपको रिक्रूटमेंट टीम में चाहिए होंगे बंदे 30, 35, 40, 50, राइट. तो एक बहुत बड़ी टेक कंपनी में नाम नहीं लूँगा बट उनका सिंगापुर में मुझे याद है कि they had 90 people in the recruitment team in Singapore because of the attrition. उनका attrition 35-40% था, उनका headcount कुछ 15,000 था, और जाहिर अब 6-7 हज़ार बंदा साल का हायर कर रहे हैं across the region, तो आपको recruitment team ही चाहिए. उस केस में आपका HR का headcount ज़्यादा होगा. तो you basically again वही बात है कि logically आप देखें अपने business को लेके तो इट विल मेक सेंस टू यू. तो जनरली अगर सबके ये कि उसमें रिपीट कर देती हूँ कि जनरली अगर हमने वो देखना है रेशियोज का देखना है तो एक तो ऑर्गेनाइजेशन का साइज एंड हेड काउंट, टोटल हेड काउंट साइज, उसका कुछ सर्टन रेशियो होगा दैट वुड यू नो मेक इट फेयर कि हाँ जी कितनी रिक्रूटमेंट या कितने लोग आपको क्या साइज आपके डिफरेंट फंक्शंस का होना चाहिए. बिकॉज शेयर सर्विसेज क्या कह लें, हम बैक एंड सपोर्ट में हम HR होता है, फाइनेंस आता है, IT आता है, आपका सप्लाई चेन आता है, एंड देन यू नो आपकी जो होते हैं एडमिन वगैरह जितने जो सपोर्ट सब फंक्शंस होते हैं, तो उसका एक रेशो. दूसरी आपने बात की कि लॉजिक ये लगाएं कि व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज आर मोर नीडेड फॉर दैट बिजनेस पर्पस, और किस इंडस्ट्री में आप फॉल करते हैं उस इंडस्ट्री में जिस तरह का अगर जो भी नीड है बिजनेस नीड है तो दैट वुड एक्चुअली थोड़ी सी आपको गुंजाइश देगी उसको ऊपर नीचे करने की, राइट. एब्सोल्युटली 100%. चलिए गुड जी.